کیوں, لو کیوں, لا نہیں, کیوں نہیں, یکلمون اللہ, کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ, کیوں نہیں کلام کرتا, بات کرتا ہم سے اللہ, او یا تأتینا, یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس, یا کیوں نہیں بریکٹ میں لکھیں گے بیکاز وہ جو لا ہے دونوں چیز کے لیے آتا ہے, یا پھر کیوں نہیں آتی ہمارے پاس آیتن کوئی نشانی, کوئی معجزہ, کوئی سائن, کذالک اسی طرح, قال الذین کہا ان لوگوں نے, من قبلہم جو ان سے پہلے تھے, اسی طرح کہتے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے, مثل قولہم, مثل یعنی جیسے, مثال, مانند, جیسی کی ان کی بات, تشابہت قلوبہم, تشابہت آپس میں ملتی جلتے, آپس میں ملتے جلتے, قلوبہم ان کے دل, ان کے دل ہی کیسے ہے آپس میں ملتے جلتے ہیں, ایک جیسے, قد بلا شبہ, تحقیق, بینا الآیاتی, بینا واضح کر دی ہم نے, کلیئر کر دی ہم نے, آیاتی نشانیاں, لقومی یوقنون لیے اس قوم کے جو یقین رکھتی ہے, یقین رکھنے والی قوم کے لیے ہم نے آیات کلیئر کر دی, بالکل کلیئر کٹ. دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے, جو علم نہیں رکھتے, وہ کیا کہتے تھے کہ کیوں نہیں اللہ ہم سے بات کرتا, یا کیوں اللہ ہمیں کوئی معجزہ نہیں دیتا, یعنی اللہ نے ہم کو نبی کیوں نہیں بنایا, ہم کو کیوں نہیں چنا, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیوں چنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لوگ آبجیکشن اٹھاتے, اعتراض کرتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حساب سے تو وہ تو نہ پیسے والے تھے, یعنی ان کے پاس مال بھی نہیں ہے, اور وہ سردار بھی نہیں ہے. تو جو مکے کے سردار ہوا کرتے تھے اور مدینہ کے بھی سردار ہوا کرتے تھے, پیسے والے لوگ, ویلدی پیپل, پاپولر پیپل, those who have powerful people, یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو کیوں نہیں ملی نبوت, اللہ ہم سے کیوں نہیں کرتا ہے بات, ہم پہ کوئی آیت کیوں نہیں نازل ہوتی, ہمیں کوئی معجزے کیوں نہیں ملتے, انہی کو کیوں ملے, انہی کو کیسے ملے. ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی کی, یعنی موسیٰ علیہ السلام کے وقت بھی لوگوں نے ایسے آبجیکشنز اٹھائے, عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے ایسے آبجیکشنز اٹھائے. تو ہر نبی کے ساتھ ہر زمانے میں لوگوں نے ایسے ہی آبجیکشنز اٹھائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ان کی باتیں ایک جیسی ہی ہے, آبجیکشنز ایک جیسے ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل بھی ایک جیسے, ان کے دل بھی ملتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے, یہ انسانی فطرت ہے, چاہے وہ پہلے زمانے میں ہو یا اس زمانے میں ہو, کسی بھی زمانے میں ہو, لوگوں کی فطرت ہی یہی ہے کہ وہ آبجیکشن اٹھاتے ہیں. کب اٹھاتے ہیں آبجیکشن, یہ سب سے امپورٹنٹ کویشچن. کب اٹھاتے ہیں آبجیکشن, کب بہانہ بناتے ہیں, جب ان کو عمل نہیں کرنا ہوتا ہے, جب ان کو بات نہیں ماننی ہوتی ہے, ایمان نہیں لانا ہوتا ہے, تو ایسی آبجیکشنز اٹھاتے. جیسے میری بیٹی ہے نا, میتھس پڑھتے وقت بولتی ہے ممی یہ کیا میتھس ہے, تم مجھے بتاؤ, تم نے بھی اتنا ہی میتھس پڑھے, آج وہ میتھس تم کو کہاں کام آ رہا ہے, بتاؤ کتنا میتھس پڑھیں گے ہم لوگ. تو وہ انسانی فطرت ہے نا. ایک منٹ, کل یہ سوال پوچھا گیا تھا, جی بھائی, مجھ سے پوچھا گیا تھا. اچھا, وہاں سے کہا کہ مجھے انجینئر بنا رہے ہو تو فائدہ کیا, اچھا یا میرے گھر میں. تو اچھا, میں نے کہ اگر کوئی بھی بچی انجینئر بنے یا لائر بنے یا کوئی بھی بنے, اگر وہ اکیڈمک ایجوکیشن لیتی ہے تو اس کو روٹی برابر آ جاتا ہے. It's a way of living. Whatever degree you may take, don't think that it is
only for earning and for jobs. Please, اللہ کے واسطے یہ کانسیپٹ ہٹاؤ ہمارے بچوں میں سے, اسپیشلی لڑکیوں میں سے. کیا فائدہ وہ جو کچن میں تو پکانے کا ہے, تم کو معلوم ہے جائے جلا ڈالے گی روز اور ہاتھ بھی جلائیں گی, اور اگر پڑھی لکھی ہوئے گی اور جاب نہیں کرے گی تو اپنے بچوں کی پرورش بھی اچھی طرح کرے گی. کل میں نے یہی جواب دیا تھا. And you have asked the same question today. Yes. We have to tell our kids that you are not تم ایجوکیشن اس لیے نہیں لے رہے ہو کہ تاکہ تم کو پیسے ملے. صرف پیسے ہی دنیا میں ہے اور کچھ نہیں ہے. It is a way of life. How to live. You need Quran as well as you need academic education also. نہیں تو ملا نہیں بن کے رہ جاؤ گے, کوئی پروپوزل بھی نہیں آئے گا. So education is not only to earn, it's your Yes. personality grows. Exactly. Okay. آج کے زمانے کی میرے کو بعد میں 2-3 منٹ دینا, کیونکہ میرے پچھلی آیتوں میں 1-2 الفاظ چھوٹ گئے. ابھی آپ کر دیجیے باجی, یہ والی آیت آپ کرا دیجیے. ہاں آپ ابھی لے لیجیے باجی. دیکھیے, ایک تو ہم نے بدی سماواتی لکھا تھا نا پہلے, بدی سماواتی, تو ہم نے بولا تھا نا انوینشن. تو بدی ہے نا, بدی کا مطلب ہوتا ہے بدت, اور بدت کیا ہوتا ہے؟ سنت کا اپوزٹ. سب کو سمجھ میں آیا؟ بدی اس سماواتی یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ انوینٹ کیا نا, تو ہم لوگ بھی تو سنت کے اپوزٹ انوینٹ کرتے رہتے ہیں. کھیر پوری بناتے رہتے, پھر کچھ بھی کرتے اور وہ نام لیتے کہ یہ سنت ہے. انجم واز لیفٹ, بھول گئی تھی بولنے. جیسے دین میں ہم لوگ نئی باتیں لے کر آتے ہیں. ہاں جو بھی نہیں تھی, نہ نبی نے کہا, نہ اللہ نے کہا, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلکہ ہم نے اپنے دل سے گھسا دیا اور اس کو انوینٹ کر کے اس کو بدعت بنا دیا, سنت کا اپوزٹ. وہ ایک میرا وہ ورڈ رہ گیا تھا. ابھی دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے پہلی بار بنایا زمین اور آسمان کو, پہلے کوئی سیمپل نہیں تھا, ہر بندہ. اچھا, پھر یہ ہے نا, جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی بات کا, تو میں نے اس میں بولا تھا 2 ورڈ امپورٹنٹ ہے, مگر قضا بھی امپورٹنٹ ہے. جب وہ فیصلہ کرتا ہے, ابھی یہاں لائرز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ میری بھتیجی بھی لائر بن رہی ہے, اور انجم بھی لائر ہے, اور بھی کئی لائرز بیٹھے ہوں گے. تو قضا کا مطلب بتانا بہت ضروری, جو میرے سے چھوٹ گیا تھا. جب پرویز بھی سن رہے آج. ہاں, تو پرویز کو بھی سننے دو, بہت ہی اچھی بات ہے, میری خوش قسمتی ہے کہ پرویز بھی سن رہے ہیں, ماشاء اللہ. تو قضا ہے نا, جب اللہ فیصلہ کرتا ہے. ابھی مجھے آپ بتائیے, قضا ہے نا, قضا ورڈ وہ جج کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ جج کے لیے. تو آپ میں سے کوئی بھی جج بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا ہے, ایون وداؤٹ ایجوکیٹنگ یور سیلف. فیصلہ ہی کرنا ہے آپ کو. 2 لوگوں کا جھگڑا ہوا ہے, وہ دونوں آپ کے پاس آئے, تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے. تو آپ بن سکتے ہو جج کے نہیں بن سکتے ہو؟ انجم, یو اونلی کین آنسر. یس باجی. آپ بن سکتے ہو نا؟ جی بن سکتے ہو نا. پھر آپ دونوں کا جھگڑا سالو کر دیتے ہو. وہ بہت بڑی وہ ہے صلح کروانے میں, بہت بڑا صدقہ ہے صلح کروانا, بہت بڑا اجر ہے. یس, بہت بڑا اجر ہے. تو ہم لوگ سب بن سکتے ہیں جج, مگر اللہ کے جج بننے میں اور ہمارے جج بننے میں کیا فرق ہے؟ I want to ask you this, and then you will write down one line, Anjum Baji may dictate to you, and remember throughout your life. ابھی جتنے بھی وکیل جج جو بھی بیٹھے ہیں مجھے جواب دیں. اللہ فیصلہ کرتا ہے اور ہم بھی فیصلہ کرتے ہیں, دونوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ فیصلہ کرتا ہے اور کہتا ہے کن فیکون, اور ہم بھی فیصلہ کرتے ہیں, تو پھر کیا فرق ہے دونوں میں؟ باجی. یس جی باجی. آپ نے کبھی کسی کا فیصلہ کروایا ہے جھگڑا سالو کرنے کو؟ جی پرویز نے ہاتھ اوپر کیے. پرویز سے بولنے دو پرویز کو, فرق مائی کیا ہے؟ ہسبینڈ جی پرویز. السلام علیکم زرینہ آنٹی. وعلیکم السلام. السلام علیکم زرینہ آنٹی. وعلیکم السلام. زرینہ آنٹی, the answer of this question was given during the earlier session of today's class when we mentioned Subhan Allah. So Subhan Allah means Allah is without any imperfection. His decision also is perfect. It cannot be imperfect.
Yes. Human decisions can be biased or Okay. influenced or even misled, whereas Okay. Allah himself is a witness to everything and he cannot be wrong in his decisions. You are very true, 100% true. But one thing is left. आपका पूरा, अब तो तुम तो इतने प्रोफेशनल लॉयर हो, अभी तुम्हारे से क्या लड़ना. बाजी बाजी आपने पढ़ाया है हम लोगों को. बाजी अभी बताऊं. ओके अंजुम क्या बोल रहा है? अंजुम आपको क्या हाँ बाजी, मैं ये बोल रही हूँ कि कोर्ट में ना 2 लॉयर्स होते हैं आमने सामने, तो अभी हाँ. परवेज ने जवाब दिए तो मेरा भी जवाब देना बनता है. तो बोलिए ना. मैं ये बोलिए. बोल रही हूँ कि जो कोर्ट में जो जज बैठा होता है ना, वो जो ऑर्डर देता है तो हाँ. उसका ऑर्डर सिर्फ पेपर पे लिखा होता है एंड वो पास हो जाता है, उसके ऊपर लग जाता है स्टैम्प. लेकिन अल्लाह हाँ. का जो फैसला होता है ना, वो सिर्फ इट इज नॉट ओनली लिटरल, वो प्रैक्टिकली अल्लाह सुब्हानो ताला उसको कर देते हैं. You are very close to the answer. तुम दोनों ने मिलके कंप्लीट कर डाले. अभी इसका जवाब ये है कि हम तो फैसला करते हैं. 2 बहनों का झगड़ा हुआ प्रॉपर्टी मैटर में, हमने फैसला कर दिया. हमारे पास आए तो हमने बोले 2 बंगले तू ले ले, 2 बंगले तू ले, बोल दिए, कागज पे लिखा गया, फैसला हो गया. दोनों ने हाथ भी मिला लिए, बात भी कर लिए. 3 साल के बाद मालूम पड़ा कि वो झगड़ा अभी तक है और वो लोग ने अमल नहीं किए. तो अल्लाह जो फैसला करता है ना, उसको नाफिज कर सकता है, वो कैंसिल भी कर सकता है. इंडिकेट कर सकता है. वो तो कुछ भी करके, जैसा सारा को 12 फ्लैट मिले, उसको 12 फ्लैट मिले, वो चाचा मर गए और दादा जिंदा रहे. दैट वाज यस व्हिच वी यस नॉट इम्प्लाई. हम लोग यस फैसला कर सकते हैं मगर उसको नाफिज नहीं कर सकते, उसको अप्लाई नहीं कर सकते. हम सिर्फ फैसला करके बाद में वो जाने. यस एग्जैक्टली, वही उसको अल्लाह सुब्हानो ताला कंप्लीटली उसको प्रैक्टिकली पूरा कर देते हैं. अल्लाह कर सकते हैं. यस, ओनली अल्लाह कैन डू दैट. अल्लाह जब जज है, जब अल्लाह कोई बात का फैसला करता है तो कोरोना को भेज देता है. यस, आई होप हम लोग तीनों मिलके, मैं और मेरा भांजा और मेरी बेटी, तीनों मिलके फैसला कर रहे हैं, और हमारी लीसा, हम लोग चारों मिलके फैसला करते हैं, ए कोरोना तू चला जा, तो वो थोड़ी जाएगा. हमारी बात से जाएगा, वो तो अल्लाह की बात से जाएगा. एग्जैक्टली. यस दिस वाज लेफ्ट, यू नो, मेरे को लगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है ये. यस, बहुत जरूरी है बाजी. सो अल्लाह दिस इज द मेन डिफरेंस. यस, अल्लाह के फैसले में और हमारे फैसले में ये फर्क है कि हम उस फैसले को नाफिज नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते, और अल्लाह कर सकता है. नाफिज यानी अप्लाई करना. यस एग्जैक्टली. जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं सूरज को कि सूरज उग जा, तो एवरी डे अल्लाह का ऑर्डर है सूरज उग जा. अभी ऑर्डर सिर्फ जज का, अगर जज लिख के दे दे, अभी उस पे कोई अमल करे या ना करे, जज थोड़ी जाके हर एक के घर में चेक करने वाला है. लेकिन अल्लाह का ऑर्डर जो होता है कि सन यू हैव टू राइज, तो सन राइज होता है, होना ही है, और वो होता भी है. ऐसे वो कानितून है, और अल्लाह इतना पावरफुल है कि उसके उस वर्ड से हर काम हो जाता है. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. और अगर हम बंदों का, बेटा हम बंदों की बात कर रहे हैं ना, तो आप सूरज को छोड़ दो ना, बंदों की बात करो. जी. और फरिश्तों को तो कुछ भी करेंगे तो करना च पड़ेगा, उन लोग को छोड़ डालो. वो लोग तो एक की देर भी नहीं लगाएंगे, वो अलग चीज है. हम कंपेयर कर रहे हैं ना. हम लोग, हमारे पास झगड़े आते रहते हैं, हम लोग फैसले करते रहते हैं. कोई को खुला लेनी है तो मैं बोलूंगी बेटा मत ले खुला, जाने दे, अभी तेरा घर चलेगा तो अच्छा रहेगा. तो वो बोलती है अच्छा, और फिर बाद में जाके वो ले लेती है. तो मेरा फैसला किधर चला गया? 2 घंटे 6 घंटे उसको समझाई मैंने. यस, अगर उसने ले ली, बराबर है बाजी. ओके. यस, जैसे कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है या कोई माल का भी झगड़ा है, तो जो जज है दोनों के बीच में फैसला करा रहा है, वो सिर्फ इतना बोलेगा कि भाई ये देखो, ये फैसला ऐसा है कि इसको 5,000 इसके बनते हैं और उसको तुमको इसको 5,000 देने पड़ेंगे. हमने ऑर्डर दे दिया, अब वो पूरा ना करे तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते. हेल्पलेस. हेल्पलेस, एग्जैक्टली.
Baji, Alhamdulillah. something is on the screen. Can you please check if it is relatable? Yes, ये मीनिंग हमने जो लिखे, कुन का मतलब हो जा, बी, और फयकुन, फयकुन यानी फिर वो काम, सॉरी फयकुन, wrong spelling. फयकुन, हाँ, KOON होएगा, हाँ, right. KOON. Yes, KOON होना चाहिए कुन का मतलब मीनिंग. Yes बाजी. अल्हम्दुलिल्लाह. ए बेटा फिर तो 100% रॉन्ग है. डोंट मिसगाइड पीपल. इट इज नॉट फेयर. फिर बोलोगे ना पूरी दुनिया बोलेंगे ये लोग को क्या आता है, पागल लोग है ये लोग सबके सब. PHIR, right बाजी. don't Kanis, please don't write all that. Don't write Kanis. It was not her mistake, it was my mistake. 118 भी हमने किए कि बाजी ये आपको लेने की थी कि कहते वो लोग जो इल्म नहीं रखते कि क्यों नहीं कलाम करता हमसे अल्लाह, या क्यों हमारे पास कोई मौजज़ा नहीं आता. पहले के लोग भी ऐसी बातें करते थे, मिलती जुलती बातें, क्योंकि उनके दिल भी मिलते जुलते थे. अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिए अपनी आयतें क्लियर कट उस कौम के लिए जो यकीन रखती है. ओवर टू ज़ैनब जी. 118 के बारे में मैं पढ़ना चाहूंगी. 118 और 119 के बारे में साथ में पढ़ लेती हूँ. अच्छा, अभी इन लोगों ने पहले तो ऑब्जेक्शन लिया, अल्लाह हमसे बात क्यों नहीं करते. हाँ, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम से कलामुल्लाह कहते हैं उनको. मूसा अलैहिस्सलाम से तो बात की थी, तो अल्लाह हमारे से बात करे, हमारे हाथ में किताब लाके देवे, और फिर हम उसको पकड़ना, और फिर हम उसको पढ़ना, और हम उसको समझना, फिर भी हम नहीं मानेंगे बात अल्लाह की. इमेजिन. तो ये है, ये इन लोगों ने कहा कुरान. हाँ, अभी हम सबको क्या करना है, हमारे सामने कुरान रखना है. अभी आप सब कुरान लेके बैठे हैं और हमको कुछ भी मत बताइए, अपने दिल में आप सोचिए, कुरान को सामने रखें और अल्लाह हमसे बात क्यों नहीं करता, कुरान को सामने रखें और खुद से सवाल करें कि समझ में आता है कि नहीं आता. अपन अपने आप को पूछेंगे कि अल्लाह मैं तो रोज 2 घंटे पढ़ती हूँ, मेरे को क्यों सुभान अल्लाह का मतलब नहीं आया. कोई बात नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी आज तो आ गया ना, तो फिर अभी रोज उसको मैं रिवाइज करूंगी और मैं उसको याद करूंगी कि और उसको मैं रीजनिंग करूंगी. रट्टे लगाने से क्या होता है. बचपन में 50 दुआएं रट्टे लगाए थे, टॉयलेट में जाने की, टॉयलेट में से आने की, खाने के पहले, खाने के बाद, वो बचपन में रट्टे लगाए थे. और आपको मालूम है, आपको नहीं मालूम होगा, बचपन में जो माएँ अपने बच्चों को ये दुआएं बगैर मायने के सिखाती है ना, तो वो तो सीख तो लेते हैं, बच्चे तो बहुत जल्दी सीख लेते हैं. और बाद में आफ्टर सम टाइम when they grow up and they go to the world and they see everything against, वो दुआओं का मतलब तो मालूम नहीं है, तो फिर वो है ना कुरान को हेट करने लगते हैं. इसलिए उनको अगर आप 4 दुआएं भी सिखाएं ना तो जरा मानने के साथ सिखाएं. आई एम नॉट अगेंस्ट दोज दुआज, दे शुड नो व्हाट इट मीन्स. अभी तुमने टॉयलेट में जाने की भी सिखाए, टॉयलेट में से निकलने की भी सिखाए. और मेरे स्कूल में मुसलमान लड़के एक क्लास में 2-2 साल रहे, मेरे से लंबे हो गए, दाढ़ी भी आ गई 10वीं में. और वहां पर टॉयलेट नहीं थी लड़कों के लिए, वो ओपन वैसे थे, और वहां पर बैठने की जगह नहीं थी, खड़े खड़े वो लोग पेशाब करते थे और तहारत नहीं करते थे. और जाते टाइम भी दुआ पढ़े, आते टाइम भी दुआ पढ़े, तो वजू किधर था. आंसर मी प्लीज. अंजुम आंसर. बिल्कुल बाजी, यानी हमने दुआएं पढ़ लिए क्योंकि रट्टा मार दिए हैं, लेकिन उनको उसे न समझ, यस ना, तहारत तो बताए नहीं, उनको शर्म आ गई ना, तो नहीं बताए बड़े बड़े जवान बच्चों को जी. और वहाँ चबूतरे हैं, वहाँ है भी नहीं टॉयलेट पेशाब करने को. मैंने खुद अपनी आंखों से सब लड़कों को देखा है जो मेरे से थे. ये कौन सा इस्लाम है, सिर्फ रट्टे लगा देते हो दुआओं के. 4 दुआ सिखाओ, खाली खाने से पहले की सिखाओ और फिर उसको बोलो इसका ये मतलब है. खाने की बात की सिखाओ और उसको बता दो कि इसका ये मतलब है. फिर बाद में वो नफरत करते हैं अल्लाह से और कुरान से. यू डोंट नो, अननोइंगली यू आर मेकिंग देम अगेंस्ट कुरान एंड अल्लाह. ये क्या मुसीबत है. तो 50 दुआएं रट्टा डाले और मतलब एक का भी नहीं मालूम है, और तहारत किए नहीं और दोनों दुआ पढ़ लिए.
Anjum, is there any solution? I was thinking regarding one more thing about teaching 12th and 10th standard boys once a week. यही बात है छोटी छोटी. जी. ये हमारी नई नस्लों का होगा क्या? तहारत वर्ड नहीं मालूम है उनको. They cannot pronounce Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Who's Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu? ये छोटी छोटी बातों में परवेज को अच्छा हो जाने दो. इंशाल्लाह अपन हफ्ते में कम से कम आधा घंटा भी बच्चों को सिर्फ यही बता दें, एक अबू बकर थे, एक उमर थे, इनको शाहरुख खान के 5 बंगले मालूम है. एनीवे, ये बाद में सोचेंगे. हाँ, अभी देखिए ये 118 और 119 जो आयत है उसमें अल्लाह हमसे बात क्यों नहीं करते. ये लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, तो हम खुद अपना कुरान अपने सामने रखें और हम खुद अपनी नई नस्लों के बारे में सोचें, और अगर मैं गलत हूँ तो आप सजेशन भी दे सकते हैं इसके बारे में. अभी जहीम वर्ड आया है, जहीम वर्ड आया है ना इसमें एंड में, जहीम. हाँ हाँ जी, आया है ना. 119 में है, अभी किए नहीं अपन. नहीं किए तो जब भी फिर मैं बोलूंगी. अभी ओवर टू अंजू. यस बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह. तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये क्यों फरमाया कि जो भी ऑब्जेक्शंस लेते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी फरमाया कि यहाँ पर पानी के चश्मे उबालो, इस पहाड़ को सोने का पहाड़ कर दो तो हम आप पर ईमान लाएंगे. आपको याद होगा अभी अभी हमने बनी इसराइल की आयतें पढ़ी कि मूसा अलैहिस्सलाम से उन लोगों ने क्या कहा कि हम अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि हम अल्लाह को अपनी आंखों से ना देख ले. याद है आपको? तो उनके ऊपर बिजली टूट पड़ी और वो वहीं के वहीं सब ढेर हो गए. तो ये सब किसी भी जमाने में हो, इंसान उनके दिल एक जैसे, उनकी सोच एक जैसी और उनके ऑब्जेक्शंस भी एक जैसे, ना करने के 100 बहाने. तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नो प्रॉब्लम, तुम नहीं मानना चाहते ना मानो. ये जो आयतें हैं ना, कुरान है या तौरात है या इंजील है या ज़बूर है, ये सारी अल्लाह की आयतें, निशानियां उस कौम के लिए जो यकीन रखती है. अगर तुमको यकीन नहीं है गैब पर तो बस खत्म, छुट्टी. नहीं है यकीन तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं है कि हम कुरान लेकर बैठे या पढ़े या समझे. अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं. अल्लाह ताला की हम इबादत करने से अल्लाह की बड़ाई में और बड़प्पन नहीं आएगा. इट इज़ नॉट गोइंग टू इंक्रीज. ना कम होगा हमारे ना करने से. फ़ायदा हमारा ही होगा अगर हम ईमान लाए और अपनी इस्लाह करें इंशाल्लाह. हाँ, एक मिनट. हाँ, 118 का वो लोग कहते हैं कि क्यों नहीं हमसे कलाम करता अल्लाह या ले आता कोई निशानी. इसी तरह कहा था उन लोगों ने जो उनसे पहले थे. वैसे दिल भी उनके एक जैसे और बातें भी उनके एक जैसी. बिलाशुबा बयान किया हमने आयतें उस कौम के लिए जो यकीन रखती है. तो अल्लाह ताला ने जानबूझ के इन लोगों को मौजज़ा नहीं दिया, हालांकि सब कितने मौजज़े दिए थे. और सारे रसूल तो बनी इसराइल में से आए थे. अब जब बनी इस्माइल में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो तुम लोग को इतना प्रॉब्लम हो रहा है. तो जब बनी इसराइल में से आए थे और ऊँटनी मिली थी, फिर ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े थे, कितने मौजज़े तुमको दिखाए, तो भी तो तुम लोग को नहीं मानना है तो नहीं मानना. मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी, असा, समंदर की, सब क्या क्या हो गया, तो अभी तुमको मानने का ही नहीं है. तो अभी तुम बोलते हमारे से बात क्यों नहीं करते. तुम्हारे से बात करके फायदा क्या है. तुम लोग को मानना नहीं है तो तुम नहीं मानोगे. पहले वाले भी ऐसे थे और तुम लोग भी वैसे ही. तुम लोग सब एक ही चट्टी के चट्टे बट्टे हो. ओवर टू अंजू. यस. और जो ये कुन फयकून की आयत आई थी, तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कल सूरह माइदा में भी हम पढ़े. अगर आप में से वहां पर कितने लोग मौजूद थे, थोड़ा सा याद करो. बाजी ने हमको बताए थे कि सबसे बड़ी नेमत जो ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी कि माशाल्लाह वो तौरात का भी हाफजा था, इंजील उन पर नाजिल हुई थी, और इंशाल्लाह अब वो जब वापस आएंगे और उनको कुरान भी मिलेगा. किसको? ईसा अलैहिस्सलाम को. तो ये ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुन कलिमे से ही पैदा किया था. अल्लाह ताला ने फरमाया कुन, और ईसा अलैहिस्सलाम
मरियम अलैहिस्सलाम उनकी अम्मी के पेट में वजूद में आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। हुई नॉर्मल डिलीवरी बाकी लेडीज की तरह ही, लेकिन हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप नहीं हुआ था। अल्लाह ताला के कुन कलिमे से वो अपनी माँ के पेट में वजूद में आए। इस बात पर हमारा 100% यकीन होना चाहिए, क्योंकि इस आयत में अल्लाह ने फरमाया ये निशानियां है, मौजज़े है उस कौम के लिए जो यकीन रखती है, प्लस उनको जो इतना इल्म दिया अल्लाह ने। अच्छा, आपको याद होगा एक खास मौजज़ा जो ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था। कनीज, आपको याद है खास मौजज़ा जो ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था? वो मुर्दों को जिंदा कर सकते थे। वेरी गुड, आई वांटेड टू हियर दिस पॉइंट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपने तरफ से ये स्पेशल मौजज़ा दिया कि मुर्दे को जिंदा करना अल्लाह के हुक्म से, बिइज़्निल्लाह। अभी मुझे ना बहुत इस चीज पर मैं गौर करने लगी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि ईसा अलैहिस्सलाम एक ऐसी शख्सियत होंगे जो अल्लाह ने उनको उठा लिया है और वो इसी लाइफ में, इसी दुनिया में दोबारा लाए जाएंगे, बट वो दोबारा पैदा नहीं किए जाएंगे, वो दोबारा लाए जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। तो ये अल्लाह ताला ने उन्हीं को ये मौजज़ा दिया और अब उन्हीं के जरिए इस कुन कलिमे को फिर से दोबारा प्रूव करेंगे अपने मौजज़े के जरिए, और फिर से ईसा अलैहिस्सलाम को ले आएंगे और फिर वो कुरान भी पढ़ेंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती भी बनेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, तो इन बातों पर अगर हमारा यकीन नहीं है तो फिर हमारा कोई फायदा नहीं है कि हम कुरान पढ़ें और समझें। लेकिन हाँ, जितना ज्यादा कुरान पढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह समझेंगे, तो इन आयतों पर यकीन हमारा पुख्ता होता जाएगा। व्हाट डू यू से बाजी? Yes, sure. Baji, can I add something? Yes, Yes. Kanis? Quran is very logically, it's very logical if you go to think. आपने अभी जो रिलेट किया अबाउट ईसा अलैहि सलाम और उनका मौजज़ा, ये काफी रिलेटेड है, तो द होल कुरान इज वेरी लॉजिकल। यस, माशाल्लाह। एंड इसीलिए बाजी के बात से भी पूरी सहमत हूँ कि बाजी ने बोले हमको नॉलेज, दुनिया का इल्म भी सिर्फ पैसे कमाने की मशीन नहीं बनना है, हमको दुनिया का नॉलेज जितना भी हम पढ़ रहे या पढ़ा रहे अपने बच्चों को, तो ये देखे कि उससे एक्चुअली उनको हासिल क्या हो रहा है। वो उनकी ब्रेन की ग्रोथ हो रही है, उनकी अखलाकी ग्रोथ हो रही है या नहीं, या वो सिर्फ बस किताबें पढ़ते जा रहे, रट्टे मारते जा रहे, एग्जाम दे रहे और नेक्स्ट क्लास में पहुंच रहे, फिर डिग्रीज ले ली, दैट्स इट। We will have to. That is common sense. It is both. Yes. Islam, Quran, she said logic. It's common sense. It's way of living. Yes. All the educational qualifications and degrees, including microbiology, including LLB, everything you will get in Quran. But in those books, you will not get Quran. Yes, Alhamdulillah. इसमें क्या नहीं है, मूंगी है, कौवा है, क्या नहीं है कुरान में? पूरा है, बॉटनी, ज़ूलॉजी, मैथमेटिक्स, सब तो है कुरान में। और हमने क्या किया है, किचन को अलग रखा है, रोटियों को अलग रखा है। अरे रोटी पकाना नहीं आएंगी, खाना नहीं खाएंगे तो कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं हासिल कर पाएंगे। Am I right or wrong? Yes बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी आज बच्चियां बोलती हम खाना नहीं पकाएंगे, तो मत पकाओ, तो मत Yes, so with Quran हमको हमारी ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलप हो रही है माशाल्लाह, अखलाक के साथ साथ, नॉलेज के साथ, दुनिया, आखिरत, एवरीथिंग। We are not just focusing on one side, one phase. अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट आयत पे चलते हैं, और आयत नंबर 119, 119। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना, बेशक हम, इन्ना बेशक हम, यानी बेशक अल्लाह सुब्हानहू ताला के लिए हम आता है, ये रॉयल हम है। अरसलनाक, इस वर्ड पे गौर कीजिए, 3 वर्ड्स है इसके अंदर। अरसल, भेजा, ना, हमने, क, आपको, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर जो काफ है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आया है। तो बेशक हमने, यानी बेशक अल्लाह ताला ने
अरसल भेजा ना हमने, अल्लाह ने, क आपको, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको भेजा, कैसे भेजा, बिल हक, हक के साथ, विथ द डिवाइन ट्रुथ, कैसे, बशीरऊ, बशीरऊ बशारत देने वाला, खुशखबरी देने वाला, ग्लैड टाइडिंग्स देने वाला, व नजीरा और खबरदार करने वाला, वार्निंग देने वाला। ये दो क्वालिटीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। वाला तुसअलू, और अल्लाह ताला फरमाते हैं वला, और नहीं, तुसअलू, तो यानी तुम होता है, पर यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, तो हम आप कहेंगे, और नहीं आपसे सवाल किया जाएगा, पैसिव वॉइस है, और नहीं आपसे पूछा जाएगा। किसके बारे में नहीं पूछा जाएगा आपसे, अन असहाबिल जहीम, असहाबी कहते हैं साथियों, साथियों के बारे में, किसके साथियों के बारे में, आग के साथियों के बारे में, जहन्नम की आग में जो लोग जाएंगे तो उनके बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ये क्यों जहन्नम में पहुंच गए। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको हक के साथ भेजा। यहाँ पर बिल हक के नीचे अंडरलाइन करेंगे और कुरान लिखेंगे। कनीज, एनी प्रॉब्लम? लॉस्ट होस्टिंग, लेट मी होस्ट यू, कनीज इज नॉट देयर। अच्छा, देखिए बहुत समझने वाली आयत है, एक ही आयत के अंदर कितना सारा मजमून है। अल्लाह ताला हमें अपनी अथॉरिटी से, अल्लाह सुब्हानहू ताला अपना स्टेटमेंट दे रहे हमको बताने के लिए। इससे बड़ा प्रूफ हमको क्या चाहिए कि अल्लाह ताला स्टेट्स कि बेशक अल्लाह ने, हमने भेजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर, हक के साथ, हक यानी कुरान के साथ, और कुरान के साथ ही वो क्या करते हैं, बशीरन, कुरान के अंदर से यानी अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की आयतों के जरिए वो बशीरन बने हुए, यानी क्या करते हैं, खुशखबरियां देते हैं कुरान के अंदर से। कौन सी खुशखबरी, कि जो कोई नेक अमल करेगा, अल्लाह का हुक्म मानेगा, तो उसके लिए अजर है, कामयाबी है, जन्नत है। और कुरान ही की आयतों के जरिए वो नजीरा भी बनते हैं। कौन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो रोल्स देकर भेजे उनको, एक रोल है बशीरा, बशारत देना, खुशखबरी देना, और नजीरा, खबरदार करना, वार्निंग देना। किससे, किससे खबरदार करना, गलत रास्ते से, गुमराही से, शिर्क से, अल्लाह की नाफरमानी से, कि जिन कामों की वजह से तुम्हारा नुकसान है दुनिया में भी और आखिरत में। जैसे एक सिगरेट के बॉक्स पे लिखा होता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वार्निंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट में कॉज लंग एंड हार्ट कैंसर। तो इंसान पढ़ता है वार्निंग, और उसके बाद उसकी मर्जी है कि वो स्मोक करे या ना करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी बाजी, कैसा पढ़ेगा, कैसा पढ़ेगा अगर पढ़ना ही ना आए तो? वो तो एकदम छोटा लिखा रहता है, जानबूझ के बचने के वास्ते जुटा। एग्जैक्टली, वो तो सब बिजनेस टैक्टिक्स है ना बाजी। हाँ, they are not well wishers, they are Yes. only doing their yes. yes, business tactics है, गवर्नमेंट का रूल है। अगर गवर्नमेंट वेल विशिंग हो तो इन चीजों को क्या कर सकती है। अभी बैंक में भी जाओ, आपकी पास और वो अपना मेडिकल में जाओ, वो लोग आपको बिल देते हैं, वो कितना लाइट होता है कि 6 चश्मे पहनेंगे ना तो भी वो बिल समझ में ही नहीं आएगा। so sorry, how can they teach? कल कोई मेहमान आए थे, आइसक्रीम मंगाई थी, अब वो मैंने कप मंगाए थे, तो वो 1-2 बचा तो मैंने भी खा ली, तो देखी तो नीचे की वो जो तलिया है वो आधा ऊपर है। इतनी सी आइसक्रीम, यस बाजी, इतनी खुशी होके खा रही थी, तो देखी तो खलास हो गई 2 चम्मच में से। नीचे का तलिया ऊपर,
चीटिंग की भी हद है ना कि नहीं? बाजी तो ये जो दज्जाल की सारी निशानियां शुरू हो गई, ये सब धोखा ही धोखा है एवरीवेयर. हाँ, But yes, Quran, yes, Quran is our savior. yes, Quran sure, is the savior and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam जो हमें खबरदार करते हैं क्लियर कट आयतों के जरिए, है sure. ना. और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपका काम बस इतना ही है कि आप खुशखबरी भी दो, आप डराओ भी, लेकिन आप अपने आप को हलाक न कर दो इनके पीछे, क्योंकि अगर वो नहीं समझते और खबरदार करने के बाद भी नहीं रुकता जो इंसान, तो फिर वो तो जहन्नम में जाएगा और आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ये क्यों जहन्नम में गया, क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी. ओवर टू ज़ैनब जी. हाँ, ये जहीम वर्ड आया है ना, जहीम. Yes. जहीम है ना, वो जन्नत सॉरी जहन्नम का बहुत ही खराब हिस्सा है. यानी वो जहीम यानी घूर घूर कर देखेगी जहन्नम, उसको आंखें मिल जाएगी, जैसे शेर देखता है लायन, जैसे अभी खा जाएगा. जहीम भी अपने शिकार को घूरती रहेगी, मेरा पेट नहीं भरा, और चाहिए, और लाकर दो, ढूंढेगी. उसकी आवाज वो उसको आवाज भी देंगे अल्लाह ताला, वो नाम लेके पुकारेगी, उसको सबके नाम मालूम होंगे, आंख भी दी जाएगी, वो चिल्लाएगी, मेरा शिकार कहाँ चला गया, जल्दी लेकर आओ, भागो मत, कहाँ भाग के जाओगे. फिर उसमें एक शेर में एंड करूंगी. दुश्वारियों को आने दो मंजिल के रास्ते में, दुश्वारियों को यानी तकलीफों को आने दो मंजिल के रास्ते में, जन्नत के रास्ते में जहन्नम नहीं है क्या. अब मैं ना 2 मिनट चाहिए मुझे इंशाल्लाह. मैं ये अभी आपने जो आयत पढ़ी ना, मुबश्शिरीन सबसे पहले तो मुझे एक सवाल करना था, डराने में और वार्निंग देने में क्या फर्क है, वो नेक्स्ट टाइम पूछूंगी. अभी एक नज़म 2 छोटी सी है, वो दुआ है, नज़म नहीं दुआ है. ये दुआ फेवरेट दुआ है पूरे कुरान शरीफ में, सभी फेवरेट है. और ये दुआ है ना, आप सुनेंगे ना तो आप बोलेंगे कि ये बहुत मतलब कितनी सच्ची है ये दुआ. मेरे कुछ रिश्तेदार गए थे लंदन अमेरिका वगैरह बाहर, और फिर मुझे भी सोचा था, उनको लगा था कि मुझे बुरा लगेगा, मुझे नहीं लेके गए थे. तो बाद में वो लोग बेचारे 8 दिन रह के आए, दुनिया का पैसा खर्चा करे और मेरे को बुलाए घर पे, और मेरे को 2 घंटे में वो पूरा जो था ना, वो मेरे को 2 घंटे में दिखाए फोकट में. तो अभी ये देखिए दुआ. ए अल्लाह, तू अपनी मोहब्बत को मेरे लिए हर चीज की मोहब्बत से बढ़कर बना दे, और अपने खौफ को हर चीज के खौफ से ज्यादा कर दे, और दुनिया की हर तलब पर अपनी मुलाकात का शौक गालिब कर दे. ये देखिए, यहाँ से सुनिए, इसको याद कर लेना, नेक्स्ट टाइम लिखा दूंगी. जब दुनिया वाले दुनिया की जीनत और रौनक देख देख कर अपनी आंखें ठंडी करते हों, या रब तू उस वक्त मेरा दिल अपनी मोहब्बत से ठंडा कर दे. ओवर टू अंजुम. Yes, बाजी. अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन आमीन कहूंगी मैं. ये नेक्स्ट टाइम मैं कल भी पढ़ने वाली, रोज पढ़ूंगी. यस बाजी, इंशाल्लाह. और देखिए, अभी हमने आज जो भी आयतें पढ़ी, फीडबैक्स आपका लेना है, और उससे पहले मैं आपको 2-3 हदीस भी बताती हूँ इंशाल्लाह, जो आप सबको मालूम है. लेकिन देखिए, अभी आज आप जब ये हदीस सुनोगे तो आपके अंदर उसको परसीव करने का कोई फर्क पड़ता है क्या, मुझे ये फीडबैक में बताइएगा. ये हदीस आप सबको मालूम है बाजी. टाइम नहीं बचेगा, मेरे पास 6 हदीसें हैं. नहीं बाजी, मैं ये हदीस सुभान अल्लाह वाली एक पढ़ूंगी सिर्फ, वो समझने के लिए कि सुभान अल्लाह समझ में आता है हमको या नहीं. अब जो जिक्र रोज करते हैं ना, वो वाला. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, जो शख्स 100 मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ेगा तो उसके लिए 1000 नेकियां लिखी जाएगी,
اور 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے. یس دیکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو اس کو 1000 نیکیاں ملے گی, اس کے 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے. اللہ اکبر. اب ہم لوگ روز تسبیح پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ کی 100 بار, تو بہت آسانی سے پڑھ لیتے ہیں, لیکن ہم کو پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا پڑھ رہے تھے. اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 ورڈز ہے جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری. اور کیا سمندر کے جھاگ کے جتنے بھی گناہ ہو تو وہ کیا ہو جائیں گے, معاف ہو جائیں گے. تو یہ ساری حدیث ہم کو پتہ ہے, لیکن ہم کیا پڑھ رہے ہیں, صرف رٹا مار رہے ہم لوگ, صرف یس صرف اسی لیے کتنا سمجھ کر پڑھنے سے فرق پڑتا ہے. یہ میں آپ سے پوچھوں گی کہ ہم نے آج یہ جو ورڈ سیکھے ہیں اس کا کچھ فرق پڑا, کوئی اثر ہوا؟ آپ لوگ مجھے آواز نہیں آ دیجیے کیا فرق پڑا ان ورڈز کو سیکھ کر, آپ لوگ فیڈ بیک دیجیے. وی اسٹارٹ وتھ انیس. ایک منٹ before feedback I have left something I want to say that. یس باجی وی ہیو ٹائم. ہاں, کیا آپ کو یہ روشنی اچھی نہیں لگتی؟ کیا آپ کو یہ روشنی اچھی نہیں لگتی؟ کیوں آپ چراغوں کو بجھانے میں لگے ہیں؟ کیوں آپ چراغوں کو بجھانے میں لگے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو محبت نہیں کرتے؟ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو محبت نہیں کرتے؟ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو خون بہانے میں لگے ہیں؟ اوور ٹو انجم. استغفر اللہ. صحیح بات ہے باجی. چلیے ابھی فیڈ بیکس دیجیے, اور یہ باجی کے جو کویشچن ہے اس پر غور کرنا ہے کہ کیا ہو گیا ہے ہم کو, کہ کیوں ہم محبت نہیں کرتے, کیوں ہم کو قرآن کا نور اچھا نہیں لگتا, کیوں ہم بدلنا نہیں چاہتے. Over to Kanis for the feedbacks. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا